آپ کو بتائیں اندرون شہر میں پارکنگ مسائل کے حل کے لیے پنجاب حکومت کا اقدام۔ پنجاب حکومت کے قائم کردہ لہر اتھارٹی نے مزید پارکنگ پلازے بنانے کا پلان تیار کر لیا ہے۔ نیلا گنبد، اناکلی اور ٹولنٹن مارکیٹ مال روڈ پارکنگ پلازہ منصوبے کی بھی منظوری۔ اب ناصر باغ میں بھی زیر زمین پارکنگ پلازہ بنانے کا فیصلہ۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں منظوری دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اندرون شہر میں پارکنگ مسائل کے حل کے لیے پنجاب حکومت کا اقدام۔ پنجاب حکومت کی قائم کردہ لہر اتھارٹی نے مزید پارکنگ پلازے بنانے کا پلان تیار کر لیا۔ نیلا گنبد، انارکلی اور ٹولنٹن مارکیٹ مال روڈ پارکنگ پلازہ منصوبے بھی منظوری۔ اب ناصر باغ میں بھی زیر زمین پارکنگ پلازہ بنانے کا فیصلہ۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں منظوری دی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اندرون شہر میں پارکنگ مسائل کے حل کے لیے پنجاب حکومت کا یہ اقدام سامنے آیا ہے۔ پنجاب حکومت کے قائم کردہ لہر اتھارٹی نے مزید پارکنگ پلازے بنانے کا پلان تیار کر لیا۔ آپ کو بتائیں برائلر کے دام عدم استحکام کے شکار۔ مرغی کا گوشت 15 روپے تک مہنگا، فی کلو قیمت 577 روپے ہو گئی۔ پیاز 100، ٹماٹر 120، لہسن 380، ادرک 580، سبز مرچ 160، لیمو 400 روپے کلو میں فروخت۔ کیلا 250 روپے کا درجن، آڑو اور خوبانی 380، آم 350 روپے کلو میں دستیاب۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے حوالے سے بات کی جائے تو پولٹری مصنوعات جو ہیں عام آدمی کے لیے خریدنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ برائلر کی قیمتیں جو ہیں گزشتہ کئی ماہ سے عدم استحکام کا شکار ہے۔ زندہ برائلر کی سپلائی جو مارکیٹ میں کی جاتی ہے اس میں جو ہے وہ بلیک مارکیٹنگ کی جا رہی ہے۔ جو فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا جو وصول کیا جا رہا ہے وہ 370 کے بجائے 375 سے 80 روپے ہے، یعنی کہ 5 سے 15 روپے تک 10 روپے تک کا اضافہ کیا گیا، اور مجموعی طور پر 15 روپے فی کلو تک جو برائلر گوشت مہنگا کیا گیا۔ 570 روپے قیمت مقرر کی گئی ہے، مارکیٹ میں 680 روپے فی کلو تک جو ہے وہ صافی برائلر فروخت کیا جا رہا ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہے، 1 روپیہ بڑھا کر انڈے 284 روپے فی درجن مقرر کیے گئے۔ مارکیٹ میں فی انڈا 25 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، اور 300 روپے درجن تک انڈے جو ہے وہ شہریوں کو فروخت کیے جا رہے ہیں۔ مجموعی طور پر 2 پھلوں کی قیمتوں میں آج اضافہ کیا گیا۔ 4 سبزیاں مہنگی کی گئی ہیں۔ ٹماٹر گزشتہ روز بھی مہنگا کیا گیا تھا، آج مزید 5 روپے مہنگا کر کے 90 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں ٹماٹر جو ہے 120 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ تمام سبزیاں، پھل، برائلر، انڈے جو ہیں مارکیٹ میں سرکاری نرخناموں کے برعکس جو ہے زائد قیمتوں پر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ جی آپ کا شکریہ عبدالقادر۔ سیکٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر احسان بھٹا کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ گزشتہ 2 روز میں عام مارکیٹ اور صنعتی استعمال کے لیے 2,42,667 میٹرک ٹن چینی فراہم کی جا چکی ہے۔ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو گراں فروشی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی عمران، آگاہ کیجیے۔ چینی گراں فروخت کی حوالے سے پیکنگ جاری ہے، جس میں سیکٹری پرائس کنٹرول سے ویڈیو لنک اجلاس ہوا ہے۔ گزشتہ 2 روز میں عام مارکیٹ میں اور صنعتی استعمال کے لیے 2,42,667 میٹرک ٹن چینی فراہم کی جا چکی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں لاہور ڈویژن کے لیے 3,348، گجرات ڈویژن کے لیے 1,217 میٹرک ٹن چینی فراہم کی گئی ہے۔ بلیٹن میں بتایا گیا کہ سرگودا ڈویژن کے لیے 405، راولپنڈی کے لیے 303، ساہیوال کے لیے 294، بہاولپور کے لیے 4,280، ڈی ٹی ایف کے لیے 1,307، فیصلہ ڈویژن کے لیے 3,280، ملتان ڈویژن کے لیے 818 میٹرک ٹن چینی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ اسی سلسلے میں سیکٹری پرائس کنٹرول کی تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو گراں فروشی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ ڈاکٹر احسان بھٹا کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر چینی اسٹاک کی فروخت کے ساتھ ساتھ تخیراتی ذخیرہ پر بھی کڑی نظر رکھی جائے۔ ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا سسٹم ناکام۔ ریشنلائزیشن کے ریڈ لائن گزر گئی مگر اساتذہ کے آرڈر نہ ہو سکے۔ ریشنلائزیشن کا عمل 1 ماہ بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ ڈیٹا سینٹر کی ورکنگ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے متعدد منصوبے التوا کا شکار۔ مزید جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے جو بڑا منصوبے کا اعلان کیا تھا کہ اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ریشنلائزیشن کی جائے گی، 1 ماہ بعد بھی یہ کام مکمل نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ یہی پتہ لگ رہی ہے کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا
जो डाटा सेंटर है वो ठीक तरीके से मौसर और काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से रैशनलाइजेशन जो है वो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 31 जुलाई डेडलाइन रखी थी कि 31 जुलाई तक रैशनलाइजेशन मुकम्मल करके असातिज़ा के ऑर्डर कर दिए जाएंगे, लेकिन ये डेडलाइन गुजर गई और आज 9 अगस्त तक भी जो रैशनलाइजेशन है वो नहीं हो सकी, जिसकी वजह से दीगर अमूर जो इससे रिलेटेड हैं वो भी इल्तवा का शिकार हैं। इसमें असातिज़ा की जो भर्ती थी, आर्मी असातिज़ा भर्ती किए जाने थे वो भी नहीं हो सके, और उसके साथ साथ जो जर्नल तबादले का राउंड शुरू होना था वो भी नहीं शुरू हो सका। तो असातिज़ा की जानिब से भी इस पर अब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि महकमा स्कूल एजुकेशन और वज़ीर तालीम ने रैशनलाइजेशन के हवाले से बड़े दावे किए थे और ये कहा था कि रैशनलाइजेशन से असातिज़ा की जो शॉर्टेज है उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन एक माह बाद भी ये रैशनलाइजेशन जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह खान की ज़ेर सदारत तंजीमी इजलास आज होगा। ज़िमनी इंतखाब के हलकों और मुनासिब उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत की जाएगी। इजलास मरकज़ी सेक्रेटेरिएट 180H मॉडल टाउन में 2:30 बजे मुनक़िद होगा। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह खान की ज़ेर सदारत तंजीमी इजलास आज होगा। तफसीलात के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, इस बारे आगाह कीजिए। देखें, पंजाब मुस्लिम लीग नून की क़यादत का तंजीमी इजलास आज 2:30 बजे तलब किया गया है। इस इजलास में मुस्लिम लीग नून के जो है तंजीमी ओहदेदारान और दीगर जो टिकट होल्डर्स हैं वो भी शिरकत करेंगे, और इस इजलास में जो है जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं जिसमें लाहौर का ज़िमनी इंतखाब 129 भी शामिल है, तो उसके हवाले से तजावीज़ दी जाएंगी और जो है तंजीमी ओहदेदार अपने अपने नाम तजवीज़ करेंगे। जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाया हुआ है उनमें से कोई नाम तजवीज़ किए जाएंगे, और उसके बाद इजलास में इख्तिताम पर जो है राना सनाउल्लाह तमाम को कंपाइल करने के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पेश करेंगे, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ये मुशावरत के बाद जो है हतमी तौर पर टिकट होल्डर्स को का बाकायदा ऐलान किया जाएगा जो ज़िमनी इंतखाबात में इंतखाब करेंगे। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। N129 ज़िमनी इलेक्शन का मामला। रहनुमा PTI हमाद अजहर के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। हमाद अजहर के वकील अबू ज़र सलमान खान न्याजी ने जांच पड़ताल मुकम्मल करवाई। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों से डाटा आने के बाद कागजात नामजदगी मंजूर या न होने का हतमी फैसला करूँगा। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के हल्के NA129 में आज हमाद अजहर के जो वकील थे बैरिस्टर सलमान न्याजी ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश होकर उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल करवाया, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से मुतल्लिका महकमों से मुतल्लिक जो रिपोर्ट्स हैं वो तलब कर ली गई हैं। जैसे ही वो रिपोर्ट्स आएंगी तो हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने का फैसला सुनाया जाएगा। अलबत्ता शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें दायर की जाएंगी, और फिर अपीलों के फैसले होने के बाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलाट किए जाएंगे, और यूं 18 सितंबर को इसी हल्के यानी हल्का NA129 में ज़िमनी इलेक्शन होगा। जी ठीक है इशफाक, आपका शुक्रिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर 7 रोज़ा दौरे पर इराक रवाना हो गए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कायम मकाम गवर्नर का मनसब संभाल लिया। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली की जिम्मेदारी निभाएंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद यासीन से। यासीन, आगाह कीजिए। जी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और रात के 7 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने अपने दौरा के दौरान रिपेयर भी करेंगे और गवर्नर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ार पर हाजिरी देंगे और ज़ियारतें भी करेंगे। वाज़ेह रहे कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान बतौर कायम मकाम गवर्नर उन्होंने चार्ज संभाली और वो 7 रोज तक कायम मकाम गवर्नर रहेंगे, जबकि डिप्टी स्पीकर ज़हीर अहमद चन्नर ने कायम मकाम स्पीकर के जो चार्ज है वो भी संभाल लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन। सानहा 9 मई के 2 मुकदमात के जेल ट्रायल। जना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल।
थाना शादमान नजर आतिश केस का जेल ट्रायल भी मुकम्मल हो गया। अदालत हतमी बहस के बाद दोनों मुकदमात का फैसला सुनाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी समेत 19 मुल्जिमान का ट्रायल हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सानहा 9 मई के 2 मुकदमात के जेल ट्रायल हुए हैं। जना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल। थाना शादमान नजर आतिश केस का जेल ट्रायल भी मुकम्मल हुआ है। अदालती हतमी बहस के बाद दोनों मुकदमात का फैसला सुनाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी समेत 19 मुल्जिमान का ट्रायल हुआ। सानहा 9 मई के 2 मुकदमात के जेल ट्रायल। जना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल। थाना शादमान नजर आतिश केस का जेल ट्रायल भी मुकम्मल हो गया। अदालत हतमी बहस के बाद दोनों मुकदमात का फैसला सुनाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी समेत 19 मुल्जिमान का ट्रायल हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं, सानहा 9 मई के 2 मुकदमात के जेल ट्रायल। पीटीआई एमपी शेख इम्तियाज़ ने मौतली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब, स्पीकर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ अपनाया कि कोरम की निशानदही पर 15 नशिस्तों के लिए रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर को ऐसी रोलिंग देने का इख्तियार नहीं। अदालत शेख इम्तियाज़ की रुकनीत मुअत्तली का फैसला कलअदम करार दे। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, पीटीआई एमपी शेख इम्तियाज़ ने मुअत्तली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब, स्पीकर समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि कोरम की निशानदही पर 15 नशिस्तों के लिए रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। स्पीकर को ऐसी रोलिंग देने का इख्तियार नहीं है। अदालत शेख इम्तियाज़ की रुकनीत मुअत्तली का फैसला कलअदम करार दे। पीटीआई एमपी शेख इम्तियाज़ ने मुअत्तली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब, स्पीकर समेत दीगर को फरीक भी बनाया गया है। मौक़िफ़ अपनाया है कि कोरम की निशानदही पर 15 नशिस्तों के लिए रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। स्पीकर को ऐसी रोलिंग देने का इख्तियार नहीं है। अदालत शेख इम्तियाज़ की रुकनीत मुअत्तली का फैसला कलअदम करार दे दे। गंदम की काश्त से पहले हुकूमत पंजाब मुतहरिक वज़ीर आला पंजाब ने गंदम के काश्तकार की माउनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। पंजाब में गंदम की बुवाई से कबल ज़रई मदाखलत की लागत में कमी के लिए इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की गंदम की बुवाई से कबल खाद की वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। गंदम के छोटे काश्तकार को रिलीफ टारगेटेड सब्सिडी देने की भी हिदायत। गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्ज देने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक। मज़ीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन बताइएगा। देखिए, गंदम के काश्त से पहले हुकूमत पंजाब मुतहरिक दिखाई दी और गंदम के काश्तकार की सपोर्ट के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर जामिया प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। गंदम के काश्तकार की मामलत और पैदावार में इजाफे के लिए जामी प्लान की इब्तिदाई मंजूरी दी गई है। पंजाब में गंदम की बुवाई से कबल ज़रई मुदाखिल की लागत में कमी के लिए इक़दामात का हुक्म दिया है। गंदम की बुवाई से कबल खाद की वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया है। मरियम नवाज़ की सदारत होने वाले इजलास में बताया गया कि पंजाब में 2 माह के दौरान काश्तकारों को मजमूई तौर पर 63 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों ने 50 अरब रुपए की बिला सूद कर्ज हासिल किए। गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 13 अरब रुपए सब्सिडी दी गई। किसान कार्ड प्रोजेक्ट की वजह से पंजाब में खाद DAP का इस्तेमाल बढ़ गया है। जी ठीक है हसन, आपका शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ है। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद, CEO LWMC बाबर साहब दीन की शिरकत। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के CEOs बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शामिल हुए हैं। कमर्शियल इलाकों में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की दूसरी शिफ्ट शुरू करने का फैसला भी किया गया है। मॉनिटरिंग के लिए हर ज़िला में असिस्टेंट कमिश्नर HR को जिम्मेदारियां सौंपने की मंजूरी दी गई है। सूबाई वज़ीर की CEOs को हर गाँव में वेस्ट इंक्लूज बनाने की हिदायत भी की गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिए। देखिए, वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ है। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियां, CEO LWMC बाबर साहब ने शिरकत की है और ब्रीफिंग दी है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के CEO के जरिए वीडियो लिंक शिरकत की है। कमर्शियल इलाकों में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की दूसरी शिफ्ट शुरू करने का फैसला किया गया है। महसूस इलाके में सफाई बरकरार रखने के लिए इजाफी काम जरूरी है। जबकि वज़ीर बल्दियात का कहना है कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को हर मुमकिन मसाइल की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। जबकि तजुर्बाती मरहला गुजर गया है। सुथरा पंजाब को अब सिस्टम में तब्दील किया जाएगा। सूबाई वज़ीर की CEOs को हर गाँव में वेस्ट इंक्लोजर बनाने की हिदायत की गई है। मॉनिटरिंग के लिए हर जिला में असिस्टेंट कमिश्नर HR को जिम्मेदारियां सौंपने का भी मंजूरी दे दी गई है।
2 नई यूनियन काउंसिल पर 1 फील्ड मॉनिटरिंग ऑफिसर मुकर्रर किया जाएगा, जबकि शहरों में 70,000 की आबादी के लिए एक FMO लगाया जाएगा। गंदगी फैलाने वाले मुकामी हुकूमतों के जरिए जुर्माने का मेकैनिज्म बनाएंगे। वज़ीर-ए-आला पानी विभाग के मुकर्रर सदा साहब को 100% हुकूमत बनाना हमारा मकसद है। निशान रफी का कहना है कि देहात में सफाई की सूरत मुहैया करने का तजुर्बा हौसला अफजा है। शहरियों में इकाई मुहिम का दायरा कार देहात तक वसीक किया जा रहा है। इकाई मुहिम की कामयाबी मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों के लिए ताउन से ही मुमकिन है। हर गाँव के तकाजे अलग हैं, जबकि सीओज देहात के लिए बाकायदगी से दौरे करें, लेकिन बल्दियात ने सीओज से इजाफी HR और मशीनरी की डिमांड तलब कर ली है। जबकि मॉनिटरिंग के डिजिटल निज़ाम को मॉनिटरिंग मौजूदगी से फायदा उठाया जाएगा। शकील अहमद मियां सेक्रेटरी वज़ीर का कहते हैं कि आम की हाजिरी और इंसाफ की हाजिरी पर समझौता नहीं होगा। जी ठीक है इमरान, साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा का तहसील रायवंड का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामी उमूर का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड ज़ुहैब मुमताज़ ने इंतजामी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम बर वक्त और मयारी अंदाज में मुकम्मल करने की हिदायत। इसी पे भी हमारे साथ मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर। इमरान, दौरे का अहवाल बताएं। देखिए, रोजाना की बुनियाद पर डिप्टी कमिश्नर के इंतजामी दौरे जारी हैं, जबकि माहौल की बेहतरी के लिए डिप्टी कमिश्नर ये दौरे कर रहे हैं मुख्तलिफ तहसीलों के। और DC लाहौर ने तहसील रायवंड का दौरा किया, जहाँ पर चीफ ऑफिसर MCL ADCG असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड ने भी उनके हमरा मौजूद है। ब्रीफिंग दी गई थी असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड ज़ुहैब मुमताज़ ने, और इस बारे से डिप्टी कमिश्नर ने जाती रोड, मार्ग रोड और इसके अतराफ का दौरा किया। सड़कों की तमीर और मरम्मत का काम बर वक्त और मयारी अंदाज में मुकम्मल किया जाए। रायवंड में जारी तरक्याती स्कीमों को बेहतरीन मयार और बर वक्त तकमील यकीनी बना जाए। शहरियों ने सफाई और इंतजामी उमूर की बेहतर अंजाम देने पर DC लाहौर का शुक्रिया अदा किया। लोगों को साफ सुथरा बनाना हमारी अमन एहतियात में शामिल है, मुश्तरका जिम्मेदारी है। तरक्याती मंसूबों के म्यार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा। DC लाहौर का कहना है कि शहरी मसाइल के हल और इंतजामी उमूर की बेहतरी के लिए तमाम मसाइल पूरे कर लाए। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। और अब वक्त हुआ है ब्रेक का, उससे पहले शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। हुकूमत का इक़दाम। पंजाब हुकूमत के कायम करदा लहर अथॉरिटी ने मज़ीद पार्किंग प्लाजे बनाने का प्लान तैयार कर लिया। नीला गुंबद, अनारकली और टोलेंटन मार्केट मॉल रोड पार्किंग प्लाजा मंसूबे की भी मंजूरी। अब नासिर बाग में भी ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा बनाने का फैसला किया गया है। साबिक वफाकी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दी गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैना, आगाह कीजिए इस बारे। लाहौर के अंदरून शहर में पार्किंग मसाइल के हल के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है कि पंजाब हुकूमत की कायम करदा लहर अथॉरिटी ने मजीद पार्किंग प्लाजे बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। नीला गुंबद, अनारकली और टोलेंटन मार्केट मॉल रोड पार्किंग प्लाजा मंसूबे की तो मंजूरी दी जा चुकी है। अब नासिर बाग में भी ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा बनाने का फैसला कर लिया गया है। नासिर बाग पार्किंग प्लाजा की फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल करने के बाद एक आला सतह के इजलास में पेश की गई, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इजलास की सदारत करते हुए नासिर बाग पार्किंग प्लाजा की भी मंजूरी दे दी है। ताहम नासिर बाग ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा मंसूबा की जिम्मेदारी और तामीराती काम टीपा को तफवीज़ किया गया है। टीपा आइंदा महकमा PND इजलास में मंसूबे की बाज़ाब्ता मंजूरी लेगा। मंजूरी के बाद टेंडर जारी करके मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया जाएगा। जराये के मुताबिक तीनों मंसूबे, जिसमें नीला गुंबद, टोलेंटन मार्केट और नासिर बाग, रवा माली साल में शुरू किए जाएंगे। रवा माली साल में मंसूबों के लिए टीपा को फंड्स भी जारी किए जाएंगे। पार्किंग प्लाजे बनने से अंदरून शहर में ट्रैफिक दबाव कम और कारोबारी सरगर्मियां बेहतर होंगी। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, पंजाब पुलिस में तरक्कियों का बड़ा रेला। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से DSPs और DSP से SPs के ओहदे पर तरक्कियां होंगी। पहले मरहले में सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां दी जाएंगी। 450 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियों के लिए बोर्ड आइंदा हफ्ते मतवक्के। बोर्ड में 1000 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर्स का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, तरक्कियों के मंजिल पंजाब पुलिस के अफसरान के लिए अच्छी खबर है कि आइंदा हफ्ते एक बड़ा रेला जो है वो तरक्कियों का आएगा, जिसमें सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के अहदे पर जो है वो तरक्कियाँ दी जाएंगी। इस हवाले से 450 जो है वो सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के अहदे पर तरक्कियाँ दी जाएंगी। और इस हवाले से जो है वो सब इंस्पेक्टर का रिकॉर्ड मुकम्मल चेक किया जाएगा। 1000 के करीब जो है वो SCR जो है वो चेक की जा रही है। जिन सब इंस्पेक्टर का रिकॉर्ड मुकम्मल होगा, आइंदा हफ्ते होने वाले बोर्ड में उनको इंस्पेक्टर के अहदे पर
तरक्कियाँ दे दी जाएंगी। सेकंड फेज में जो है वो इंस्पेक्टर से DST का जो है वो बोर्ड होगा और उसके बाद जो है वो अगस्त के आखिरी हफ्ते में जो DSP से जो है वो SP का बोर्ड होगा और उसके बाद जिन जो है वो अफसरान की SCR जो है वो मुकम्मल होंगी उनको अगले अहदे पर जो है वो तरक्कियाँ दे दी जाएंगी। अगर देखा जाए तो पंजाब पुलिस की तारीख में इतनी बड़े पैमाने पर जो है वो 450 इंस्पेक्टर को एक वक्त में तरक्कियाँ नहीं दी गई। मरहले में मुख्तलिफ मरहलों में जो है वो तरक्कियाँ दी जाती हैं, लेकिन अब जो है वो मुख्तलिफ सीटें जो है वो खाली हुई हैं और उसके बाद जो है वो नई सीटें भी जो है वो मंजूर हुई हैं। सेफ सिटी, राइट मैनेजमेंट फोर्स और पीरा फोर्स की जो है वो सीटें मंजूर हुई हैं, जिसके बाद जो सब इंस्पेक्टर की से जो इंस्पेक्टर की जो असामियाँ हैं वो बड़े पैमाने पर खाली हुई हैं और हुकूमत की तरफ से नई सीटों की मंजूरी के बाद भी जो है वो 450 के करीब जो है वो सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के होते पर जो है वो तरक्कियाँ दी जा रही हैं। इसके साथ जैसे नीचे सीटें खाली होंगी उसके तहत जो है वो पंजाब पुलिस में नई भर्तियां जो हैं वो कांस्टेबल की वो भी की जा रही हैं। इस वजह से राइट मैनेजमेंट फोर्स में जो भर्तियां का अमल है वो भी जो है वो जल्द शुरू हो जाएगा। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल लाहौर की कार्रवाई आजम क्लॉथ मार्केट से हवाला हुंडी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम गुल अमीर से 64 लाख रुपए हवाला हुंडी की रसीदें और दीगर डिजिटल शवाहिद भी बरामद हुए हैं। मुलजिम का ताल्लुक पेशावर से है। मजीद जानते हैं फ़ाहद अमीन से। फ़ाहद बताइएगा। जी तो बिल्कुल FIA लाहौर जोन की जाने से हवाला होंगी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। आजम क्लॉथ मार्केट लाहौर से हवाला होंडी में मुलव्वस जो है वो मुलजिम गिरफ्तार कर गया है। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त गुल अमीर के नाम से हुई है। मुलजिम का ताल्लुक पेशावर से है। मुलजिम करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज और हवाला होंडी में मुलव्वस पाया गया था। FIA की जाने से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। छापामार कार्रवाई में मुलजिम से 64 लाख पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए हैं। FIA तर्जुमान का कहना है कि मुलजिम की कब्जे से हवाला होंडी की रसीदें और दीगर डिजिटल शवाहिद भी बरामद कर लिए गए हैं। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। FIA तर्जुमान का कहना है कि मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी ठीक है फहद, आपका शुक्रिया। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का फिरोजपुर रोड जौहर टाउन और मज़ाफात में ऑपरेशन। 29 मारूफ रेस्टोरेंट फूड चेन्स की चेकिंग। 16 को 11,45,000 के जुर्माने आयद। कवानीन के खिलाफ वर्जी पर स्नैक्स यूनिट की प्रोडक्शन बंद। 13 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस। 1000 किलो हशरात वदा मकई पाउडर, 230 किलो एक्सपायर्ड अशिया और स्नैक्स तलब किए गए। तफसीलात के लिए बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान बताइए इस बारे। देखिए क्रैकडाउन जारी है। फूड अथॉरिटी की तरफ से फूड सेफ्टी टीमें हर रोज जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन कर रही हैं। फूड सेफ्टी टीमों ने जो है कंप्रोमाइज इस बात से माइनिस के ब्रांड पर जो है छापा मारा है और बड़ा मरूफ ब्रांड है जहाँ पे DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर जो है फूड सेफ्टी टीमों ने फिरोजपुर रोड जौहर टाउन और सब मज़ाफात पर ऑपरेशन किया है। 29 मारूफ रेस्टोरेंट्स फूड चेन की चेकिंग की गई है। 16 को 11,45,000 रुपए के जुर्माने किए गए हैं। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर स्नैक्स यूनिट की प्रोडक्शन बंद की गई है। 13 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि 1000 किलो हशरात ज़दा मकई पाउडर, 230 किलो एक्सपायर अशिया और स्नैक्स तलब किए गए हैं। साफ़ा दी गई हदायत पर अमल न करने पर स्नैक्स यूनिट्स को बंद किया गया है। आसिम जवेद DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि यूनिट में सफाई के नाक़िस इंतजाम, मुलाजमीन के मेडिकल अदब मौजूद पाए गए। रेस्टोरेंट्स में फास्ट फूड की तैयारी के लिए एक्सपायर अशिया इस्तेमाल की जा रही थी। टूटे फर्श पर अशिया और नौज की मौजूदगी, एक्सपायर अशिया स्टोरेज एरिया में मौजूदगी पाई गई। कवानीन के मुताबिक एक्सपायर अशिया के लिए अलग जगह मुख्तस न की गई थी, जिस पर कीड़ा लगी फंगस ज़्यादा मकई से मुख्तलिफ स्नैक्स तैयार किए जा रहे थे। स्नैक्स यूनिट में चूहों, छुपलियों और मरी मछलियों की भरमार पाई गई। कवानीन के खिलाफ खुराक का कारोबार करने वालों के कारोबार जड़ से उखाड़े जा रहे हैं। कवानीन के मुताबिक काम करने वालों के लिए आवाम दोस्त पॉलिसी है। आसिम जवेद का कहना है कि मिलावटी और जालसाज माफिया को हरगिज रियायत नहीं है। खुराक की तैयारी से तहसील तक चेकिंग की जा रही है। जी ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया। 14 अगस्त को स्कूलों में परचम कुशाई की तकरीब होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पंजाब के तमाम स्कूलों को हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में 14 अगस्त को सुबह 8 बजे परचम कुशाई करेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस के वक्त पर पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों में परचम कुशाई की जाएगी। तफसीलात से आगाह करेंगे आतिफ परवेज। आतिफ बताइए इस बारे।
जी भी हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि 14 अगस्त जो है वो भरपूर तरीके से मनाई जाएगी और इसी सिलसिले में जो परचम कुशाई की तकारीर जो है वो भी मुनक्किद होंगी। तो महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तमाम स्कूलों के सरबराहान को ये कहा गया है कि ये परचम कुशाई सुबह 8 बजे होगी और इसकी वजह ये बताई गई है कि वफाक की सतह पर वज़ीर-ए-आज़म भी सुबह 8 बजे ही परचम कुशाई करेंगे। तो उसी की टाइमिंग को मद्देनजर रखते हुए तमाम 38,000 जो सूबे के स्कूल हैं उनको भी कहा गया है कि सेम वक्त पर वो भी परचम कुशाई करेंगे और इस हवाले से जो हदायत हैं इन पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है। बहुत शुक्रिया आतिफ। जश्न आज़ादी में चंद रोज बाकी, बाजार और गलियों को सब्ज हलाली परचम से सजाने का सिलसिला भी जारी। गुलशन रावी के रहायशी भी वतन अजीज से इजहार का मोहब्बत करते रहे। आगा मुजम्मिल ने अपनी गाड़ी को सब्ज और सफ़ेद रंग से भर दिया। आपको बता रहे हैं कि वतन अजीज से इजहार मोहब्बत जारी है। जश्न आज़ादी में चंद रोज़ बाकी हैं, बाजार और गलियों को सब्ज हलाली परचम से सजाने का सिलसिला भी जारी है। गुलशन रावी के रहायशी भी वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे सामिया सईद से। जी सामिया, बताइए। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी के रंग अब लाहौर की सड़कों पर भी नजर आएंगे। लाहौर के एक शहरी ने मुल्क से मोहब्बत का इजहार एक अनोखे अंदाज में किया है और अपनी गाड़ी को जो है वो खूबसूरत परचम के रंगों से सजा लिया है। अगर मेरा कैमरामैन अदनान आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी को जो है वो खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। सब्ज हलाली परचम भी बनाया गया है और ये हर एक की तवज्जो का जो है वो मरकज बना हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि शहरी भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं जो खूबसूरत गाड़ी को जो है वो देख रहे हैं, इनके साथ पिक्चर्स भी बनवा रहे हैं। जी सर, बताइएगा कैसे आइडिया आया? लोग अपनी गली मोहल्लों को सजाते हैं, आपने अपनी गाड़ी को सजा डाला। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा 5वां साल है, मैं हर साल इसी तरह गाड़ी सजवाता हूँ। बस एक पाकिस्तान के साथ जज्बा होता है, हर बंदे का अपना अपना अंदाज़ है। हमारा अंदाज़ ये है कि गाड़ी पे झंडा बनवाना और सड़कों पे लेके फिरना। लोग जब जाहिर सी बात है गाड़ी को देखते हैं, आते हैं, सेल्फीज वगैरह करवाते हैं, खुशी होती है। जी बिल्कुल, हर एक की दिल की धड़कन जो है वो पाकिस्तान है और जो है वो पाकिस्तान से लोग मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। बच्चे भी जो हैं वो बड़ी खुशी से गाड़ी को देख रहे हैं, पिक्चर्स भी बनवा रहे हैं इसके साथ। और हर एक की दिल की धड़कन जो है वो पाकिस्तान है और लोग अपने गली मोहल्लों को भी सजा रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो अपनी गाड़ी को भी खूबसूरत अंदाज में सजा रहे हैं ताकि जो है वो एक पैगाम भेज सकें कि पाकिस्तान जो है वो हमारा मुल्क है और हम इसकी हिफाजत करना जानते हैं। जी, बुलेटिन में शामिल करेंगे ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा।